شادی کے بعد آج میرا اپنے سسرال میں پہلا دن تھا۔ میں نئی نویلی دلہن خوبصورت جوڑا نکال کر تیار ہونے کا سوچ رہی تھی کیونکہ ناشتہ لے کر میرے میکے والے آ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھی عادت کے مالک تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ باتیں سمجھائی تھیں۔ میں اس گھر میں سب سے کم عمر تھی، اس لیے اتنی سمجھ نہیں رکھتی تھی کہ سب کو کیسے خوش رکھا جائے یا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کی باتوں پر غور کرتے ہوئے میں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے نوک کیا گیا۔ میں گہری نیند سے ابھی جاگی تھی۔ اس قدر زوردار دستک سے میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولتی، باہر سے اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تبھی باہر کھڑی میری ساس نے مجھ سے کہا، لگتا ہے تمہیں صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں، اس لیے شاید ابھی تک سو رہی ہو۔ ساس کی بات سنتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، جی وہ بس رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، شاید نئی جگہ تھی اس وجہ سے۔ میں بالکل نہیں سمجھی تھی کہ میری ساس مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے تو ایک عام سی بات سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنے بستر پر جا کر بیٹھنے لگی کہ تبھی وہ گھورتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، میڈم ابھی بھی سونے کا ارادہ ہے کیا؟ اپنی ساس کا تلخ لیچا دیکھتے ہوئے میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھ سے میرے گھر میں کبھی بھی کسی نے ایسے بات نہیں کی تھی، لیکن آج پہلے ہی دن مجھے یہ سب دیکھنے کو مل رہا تھا۔ دل بہت گھبرانے لگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا۔ لیٹ اٹھنے پر پہلے ہی دن میری ساس نے مجھے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ میں ایک دن کی دلہن تھی، ابھی تو میرے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی تھی اور مجھے اپنے سسرال میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ عامر 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور 2 بہنیں ابھی کنواری ہی تھیں۔ مجھے بہت محبت سے بیاہ کر لایا گیا تھا۔ اپنی بیٹی بنا کر میری ساس مجھے اس گھر میں لائی تھی۔ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، اس لیے ہمیشہ بہن کی کمی کو محسوس کرتی تھی۔ 4 بہنیں پا کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، لیکن ساس کا رویہ اور بدلہ لہجہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر گیا تھا۔ عامر بھی ابھی تک سو رہے تھے۔ ساس کی باتیں سن کر میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی میری سب سے چھوٹی نند کمرے میں آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا رات کا بکھرا ہوا سامان اٹھانے لگی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے زارا بولی، بھابھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ میں پریشان تھی یہ سوچ کر کہ نہ جانے اب یہ کیا پیغام لے کر آئی ہوگی۔ تبھی وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، ویسے آپس کی بات ہے بھابھی، آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی حسین بھابھی ملے گی۔ میں زارا کی بات سن کے مسکرانے لگی اور پیار کی نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، تم خود بھی تو بہت پیاری ہو، بھلا ہماری زارا کسی سے کم ہے کیا؟ میری بات سن کے وہ مسکرائی اور ساتھ ہی مجھ سے کہنے لگی، ارے یار میں تو آپ کو بتانے آئی تھی کہ آپ کے میکے والے آئے ہیں، آپ کے لیے صبح کا ناشتہ لے کر اماں نے کہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر آ جائے نیچے۔ زارا مجھے کچھ دیر ہنسا کر چلی گئی تھی اور ناشتے کی خبر نے میرا موڈ کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہونے لگی کیونکہ مجھے اماں ابا سے ملنا تھا۔ ایک رات کی دوری نے ہی مجھے اداس کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور ابا ہی میرا ناشتہ لے کر آئے ہوں گے۔ آئینے کے سامنے کھڑی میں عامر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے ان پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی کھلی زلفوں سے عامر کو تنگ کروں، مگر پھر اماں اور ابا کے بارے میں سوچ کر میں جلدی سے تیار ہو کر نیچے جانے لگی۔ میں تیز قدم سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی۔ میری نظریں اماں اور ابا کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی میری نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی جہاں میری دوسرے نمبر والی نند کھڑی کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے سلام کرتے ہوئے پوچھا، اماں ابا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں اس گھر میں نہیں تھی، نہیں جانتی تھی کہ گھر کا گیسٹ روم کہاں ہے۔ میرے پوچھنے پر میری نند نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی، ارے تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے؟ منہ اٹھا کر آئی، سلام کیا اور اپنے میکے کی فکر کرنے لگی۔ ایک بار نہیں پوچھا کہ آپا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کل کی تھکاوٹ اتری کہ نہیں، بس اپنے گھر والوں کی فکر ہونے لگی۔ میری بڑی نند ایک ہی سانس میں مجھے اتنا کچھ بول گئی تھی اور میں حیران کھڑی اس کا منہ دیکھ رہی تھی کہ تبھی سونی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سونی اماں کے گھر پر کام کرتی تھی، ہمارے گھر کی سب سے خاص کام کرنے والی تھی۔ اماں نے کبھی سونی کو کام والی نہیں سمجھا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اسے نوکرانی مانا تھا۔ وہ مجھے بہن کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں نے سونی کو دیکھا تو خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے میں نے سونی سے
अम्मा और अब्बा के बारे में पूछा कि वो लोग कहाँ पर हैं। मेरे सवाल पर सोनी खामोश खड़ी थी। मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, क्या बात है सोनी, अम्मा और अब्बा कहाँ हैं? वो नाश्ता लेकर आए थे ना, कहाँ हैं वो? नजर नहीं आ रहे। तभी पास खड़ी नंद ने कहा, तोबा तोबा, पहली दफा देखा है अम्मा की अपनी इकलौती बेटी का नाश्ता नौकरों के हाथ भेजा गया। अरे अम्मा, मैं ना कहती थी अमीर लोगों में रिश्ता मत कर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब भुगतो रिश्तेदारों को, जवाब देना कि तुम्हारी इकलौती बहू रानी का नाश्ता उसके अम्मा अब्बा नहीं बल्कि एक काम वाली के हाथ आया है। उफ मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। पहले ही दिन मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा था। मैं ज़ारों के तार रोने लगी। मेरी नंद तंज के तीर चला रही थी और मैं खामोश खड़ी उसके तीर का निशाना बन रही थी। तभी सास सामने आई और सोहनी से कहने लगी, अब तुम जा सकती हो। पूरे शरीकों में मेरी नाक कटवा दी तुम्हारी मालकन ने। अब जाओ तुम यहाँ से, और शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से अपनी मालकन का। सोहनी अभी खड़ी थी, शायद वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी कि तभी सासू माँ ने एक गर्म लहजे में कहा, अब खड़ी खड़ी इसका मुंह क्या देखे जा रही है? तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ यहाँ से, हमें वलीमे की भी तैयारी करनी है। मैं अपनी सास का रवैया देखकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी। आमिर अभी तक सो रहे थे। मेरा दिल बहुत बेचैन था। जी चाहता था कि आमिर को उठाऊं और उनको बताऊं कि उनकी माँ और बहन ने पहले ही दिन मेरा क्या हश्र किया है, मगर मैं जल्दबाजी में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती थी जिससे मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता। वलीमे का वक्त हो चुका था। मुझे घर पर ही तैयार होने के लिए कहा गया। मैं हैरान थी कि वलीमे के लिए मेरी बुकिंग किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं करवाई गई थी। शादी से पहले तो ये सब आमिर की कमाई का बहुत झंझोरा पीटती थी कि आमिर इतना कमाता है, आमिर ये लाता है वो लाता है। मैं तो इनकी कंजूसी देखते हुए हैरान परेशान हो रही थी। खैर तैयार तो होना ही था। मैं तैयार होने लगी जब आमिर को मैंने कमरे में आते हुए देखा। मैंने सोचा कि मैं आमिर से सास और नंद के बारे में अभी बात कर लूँगी, क्योंकि मैं उनके रवैये से बहुत परेशान थी। मगर यहाँ तो कुछ और ही होने वाला था। आमिर का मूड सख्त ख़राब था, इतना ख़राब कि मैं डर गई थी कि इन्हें क्या हुआ। अभी तो हंसी खुशी कमरे से बाहर गए थे। इससे पहले कि मैं आमिर से परेशान होने की वजह पूछ पाती, आमिर के मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर कॉल रिसीव करते ही आमिर ने कहा, यार तुम गाड़ी लेकर होटल आ जाना, तुम्हें अपनी भाभी को उनके मैके छोड़ना है। आमिर काफ़ी गुस्से से बात कर रहे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पहले ही दिन इतना सब कुछ अजीब देखने को मिल रहा था। कॉल बंद करते हुए आमिर ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें होटल पहुंचना है। मैंने अभी इतना ही पूछना चाहा कि आप नहीं जाएंगे क्या? आमिर मेरी बात पूरी सुने बगैर ही कमरे से जा चुके थे। मुझे दूसरे दिन की दुल्हन बनाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। आमिर का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं था। मेरा दिल बहुत परेशान था। सब घर वाले आमिर के बारे में सवाल कर रहे थे। तभी मैंने अम्मा के नंबर से आमिर को कॉल की, मगर उन्होंने कॉल रिसीव ही ना की। फिर मैंने एक मैसेज छोड़ा, आमिर आप कहाँ हैं? सब मेहमान आपका पूछ रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी हैं होटल मेरे पास आ जाएं। सवेरा। लास्ट में मैंने अपना नाम लिख दिया था। कुछ ही देर में मुझे आमिर की कॉल आ गई। मैं बहुत खुश हुई और जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहने लगी, जान आप कहाँ हैं? आमिर ने बहुत ही सीरियस लहजे में कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, फिक्र मत करो, तुम चली जाना, मेरा कज़न तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ाएगा। मगर आमिर, अभी इतना ही कहा था कि आमिर ने फ़ोन काट दिया। अब मुझे बहुत फिक्र होने लगी कि तभी मेरे कान में सोहनी ने आकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद मेरा रंग सर्द पड़ने लगा था। बगैर दूल्हे के मेरा वलीमा करवा दिया गया और कज़न के साथ मुझे मैके भी भेज दिया गया। अम्मा अब्बा भी बहुत परेशान थे। हर कोई बातें करता नजर आ रहा था। घर पहुंचते ही मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मेरे दिलो दिमाग पर सोहनी की बातें असर कर गई थी। जो सोहनी ने सुना था, क्या वो सच था? मेरा नाम सवेरा है और मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा एक बिजनेसमैन थे। कारोबार इतना वसी ना था, लेकिन इतना था कि घर में खुशहाली थी। अम्मा घरेलू खातून थी। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी। यही वजह थी कि मैं उनकी लाडली भी थी। अम्मा और अब्बा मुझसे बेहद प्यार करते थे और मुझ पर जान निछावर करते थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और इसी शौक़ को देखते हुए अब्बा ने मुझे करीब के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। मैं अपनी हर क्लास में अव्वल नंबर पर आती। पढ़ाई में मैं काफ़ी ज़हीन थी और अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए मैं सबके दिलों पर राज करती। मेरी कामयाबी से न सिर्फ मेरे उस्ताद बल्कि घर वाले, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब भी बहुत खुश थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। मेरे नाज नखरे भी बढ़ते चले गए। मैं बहुत ही खूबसूरत थी।
میرے چہرے پر موٹی موٹی آنکھیں، کالے لمبے سیاہ بال میری خوبصورتی میں اضافہ کرتے دکھائی دیتے، اور میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی ہونے کے باوجود بھی میں نے کبھی اس بات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے منہ سے نکلی ہر بات میرے ابا پوری کر دیا کرتے ہیں، میری ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا، مجھے بہت ہی نازوں سے پالا گیا تھا۔ آج صبح جب میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اماں نے آواز دیتے ہوئے مجھے ناشتے کی ٹیبل پر آنے کو کہا۔ میں فریش ہو کر نیا جوڑا پہنے ہاتھ میں کتابیں لیے ناشتے کی ٹیبل پر جا پہنچی۔ اماں اور ابا پہلے سے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے باری باری میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، رات کیسی گزری ہماری گڑیا کی؟ اماں اور ابا کا یہ معمول تھا، جب بھی میں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھتی تو وہ میرے ماتھے پر بوسہ کرتے اور ہمیشہ یہی سوال کرتے، اور میں مسکراتے ہوئے ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، جس کے آپ جیسے ماں باپ ہوں اس کی ہر رات، ہر دن، ہر پل ہی خوبصورت گزرتا ہے۔ میرے اس جواب سے اماں اور ابا بہت خوش ہوتے۔ اماں اور ابا مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک میں ناشتے پر نہ پہنچتے تب تک دونوں ناشتہ نہیں کرتے تھے، اور یہی حال دوپہر اور رات کے کھانے کا بھی تھا۔ اماں ابا ہمیشہ کھانے کی ٹیبل پر میرا انتظار کیا کرتے۔ میں اگر یونیورسٹی سے لیٹ بھی ہو جاتی تب بھی وہ اسی وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک میں پہنچ نہ جاتی۔ آج تمہارا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے، امید ہے کہ تمہیں اچھا لگے گا، اماں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر نظر دوڑائی اور واو فنٹاسٹک ماما، آپ نے تو سچ میں میری پسند کا ناشتہ بنایا ہے، آلو کے پراٹھے، واو، آج تو کھانے کا مزہ آئے گا۔ میری بات سنتے ہوئے اماں ناراض ہونے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے ماما کہہ کر مت بلایا کرو۔ اماں لفظ سننے میں جو سکون ہے وہ ماما سننے میں نہیں۔ میں اماں کی بات سن کے مسکرانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اماں سے کہنے لگی، او مائی گاڈ مائی دیسی ماں۔ میری بات سنتے ہوئے ابا بھی مسکرانے لگے۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ابا سے کہا کہ آج مجھے آپ یونیورسٹی ڈراپ کر دیں۔ ابا کی میٹنگ تھی، انہیں ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے ابا نے آج بھی مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی یونیورسٹی بھیج دیا۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی میرے آگے پیچھے منڈلاتا نظر آتا۔ میری خوبصورتی نے سب کو دیوانہ کر رکھا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ میرا ماننا تھا کہ یونیورسٹی میں ہم تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں تو ہمیں صرف تعلیم ہی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ نئے رشتے قائم کرنے۔ میری یونیورسٹی میں صرف ایک ہی سہیلی تھی جو بچپن سے میرے ساتھ ہی پڑھتی آ رہی تھی۔ ہم دونوں بہت اچھی اور قریبی سہیلیاں تھیں۔ فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، میں اور ارم ایگزامز کی تیاریاں کر رہی تھیں کہ تبھی اچانک سے میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی میں نے پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے دیکھا تو ابا کی کال تھی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ کیسی ہے میری گڑیا اور کہاں تک پہنچی ہے میری بیٹی کی پڑھائی؟ ابا بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے۔ تھکاوٹ بھرے لہجے سے میں نے ابا کو بتایا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، فائنل ایگزامس ہیں اور ابھی بہت تیاری پڑی ہے۔ تبھی ابا مجھے بتانے لگے کہ میں گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، چھٹی ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں، جیسے ہی چھٹی ہو تو فوراً باہر آ جانا۔ اتنا کہتے ہوئے ابا نے کال کاٹ دی۔ میں اور ارم کتابیں سمیٹتے ہوئے گیٹ کی طرف جانے لگیں کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہونے ہی والا تھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں ارم کا بازو تھامے اپنے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ارم میرے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی۔ ابا نے ارم سے حال احوال جانا اور بعد میں مجھ سے کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ میری پرنسس کو لگتا ہے پڑھ پڑھ کے آج بہت تھک چکی ہے۔ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں آج بہت تھک گئی ہوں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ ابا میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، تو پھر تمہاری تھکاوٹ دور کر دی جائے تمہیں ایک اچھی خبر سنا کر۔ میں حیران تھی کہ ابا کو ابھی بھی مذاق سوچ رہا ہے۔ میں سیریس بات کر رہی تھی اور ابا میرے ساتھ مذاق کے موڈ میں تھے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کون سی خوشخبری ہے جو آپ کو مجھے سنانے کے لیے خود آنا پڑا؟ ابا مسکرائے مجھ سے کہنے لگے، میں نے سوچا ہے تمہارے ایگزامز کے فوراً بعد ہی تمہاری شادی کر دوں۔ ابا کی بات سنتے ہوئے بے ساختہ میرا کہکا چھوٹ گیا۔ شادی اور میری؟ کیوں اتنے تنگ آ گئے ہیں آپ مجھ سے؟ ہنستے ہوئے میں نے ابا سے کہا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ابا نے میری طرف دیکھا۔ ابا کی آنکھوں میں پانی تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میری بات سے ابا کا دل دکھا ہو، حالانکہ بات تو میں نے ایسی کوئی دل دکھانے والی نہیں کی تھی۔ تبھی میں نے ابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سب خیریت تو ہے؟ آپ کی آنکھوں میں پانی کیوں آ گیا؟ تبھی ابا مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن سب بیٹیوں کو اپنے گھر چلے جانا ہی ہوتا ہے، اور کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی سے کبھی تنگ نہیں آتا۔ یہ تو رسم دنیا ہے جسے ہر ماں باپ کو نبھانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے فوراً سے ابا کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، لیکن ابا ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی مجھے آپ کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنا ہے،
शादी में क्या रखा है, जब करनी होगी हो जाएगी, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे आपके और अम्मा के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना है। सारा टाइम तो मेरा पढ़ाई में गुजर गया, अब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके फारिग हो जाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ और अम्मा के साथ गुजारना चाहूँगी। और आप हैं कि मुझे ब्याह कर मुझसे जान छुड़वाने का सोच रहे हैं। ऐसी बात नहीं सवेरा बेटा, कल भी शादी करनी है तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब मुंह मोड़ ले। अब्बा की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रोने लगी और अब्बा से कहा कि दोबारा कभी ऐसी बात मत करना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। अब्बा मुझे मनाने लगे। यूं ही बातें करते करते घर आ गया और मुझे उतारने के बाद अब्बा इरम को उसके घर छोड़ने के लिए चले गए। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं घर के अंदर जाने लगी। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची तो कुछ मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने सबको सलाम किया और वहीं अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा मेरा तारुफ करवाते हुए कहने लगी, ये है मेरी बेटी सवेरा, एमफिल फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। सोफे पर सामने एक खातून बैठी थी जो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और माशाल्लाह माशाल्लाह कहने लगी। मैंने आज उन्हें पहली दफ़ा देखा था। आज से पहले मैंने इस फैमिली को नहीं देखा था। 3-4 लड़कियां भी पास बैठी थी जो उम्र में मुझसे बड़ी दिखाई दे रही थी। अभी अम्मा सामने बैठी फैमिली से बातें करने में ही मसरूफ थी। जब मैंने अम्मा से इजाज़त लेते हुए अपने कमरे में जाने के लिए कहा, तभी अम्मा ने मुझे वहीं पर बैठे रहने का बोला। तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, फिर अपने कमरे में चली जाना। मैं अम्मा की बात सुन के अब्बा का इंतज़ार करने लगी। मुझे शदीद प्यास लगी थी। मैंने सोनी को आवाज़ दी। सोनी हमारे घर की सबसे ख़ास बंदी थी। कहने को तो वो एक नौकरानी थी, लेकिन हमारे घर का फ़र्द बन चुकी थी। मैंने कभी भी उसे बहन से कम नहीं माना था। हाथ में एक गिलास पानी लिए सोनी मेरे करीब आई और मुझे पानी देकर मेरे हाथ से सामान पकड़कर मेरे कमरे में रखने के लिए चली गई। मैंने पानी पिया और काफ़ी देर अब्बा का इंतज़ार किया। अब्बा को घर के अंदर दाखिल होता देखा तो मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और अब कुछ देर आराम करना चाहती थी। अम्मा ने तो मुझे मेहमानों के सामने बिठा रखा था। न जाने अम्मा क्या बात साबित करना चाह रही थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैंने कभी भी गुस्सा किया नहीं था, इसलिए इस वक्त तो बिल्कुल भी गुस्सा करना नहीं बनता था। जैसे ही अब्बा आकर मेहमानों के बीच बैठे तो अब्बा ने मुझे अपने पास बिठाते हुए कहा, सवेरा, तुम्हारी माँ ने इनसे तुम्हारा तारुफ तक करवा दिया होगा, लेकिन इनका तारुफ तुमसे नहीं करवाया होगा। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तभी अब्बा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा, सवेरा, ये हैं आपा रशीदा और ये उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 बेटियां शादीशुदा हैं और 2 की अभी शादी करनी है। इनका एक बेटा है आमिर, जो कि बैरून मुल्क होता है। शायद तुम इस फैमिली के बारे में नहीं जानती। मेरे बहुत करीबी दोस्त हमजा इस फैमिली के सरबराह थे, जो एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने इज़हार अफसोस किया और फिर से अब्बा की बात गौर से सुनने लगी। तभी अब्बा ने मुझे बताया कि ये लोग तुम्हारे रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं और मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी कि उसके इकलौते बेटे के साथ तुम्हारी शादी करूंगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारी शादी आमिर से करना चाहता हूँ। मैं अब्बा की बात सुन के हैरान थी, क्योंकि अचानक से मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने का फैसला ये लोग कर चुके थे। तभी मैंने अब्बा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपका जो भी फैसला है मुझे वो मंजूर है। मैं शादी से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे फाइनल ईयर्स के इम्तिहान होने वाले हैं। मेहरबानी होगी अगर आप लोग मुझे ये इम्तिहान देने दें। सामने बैठी खातून फौरन से बोली, हाँ हाँ बेटा, हमें तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं, तुम अपने इम्तिहान दो। आमिर को भी आने में अभी 2 माह बाकी हैं। जैसे ही आमिर आएगा हल्की फुल्की रस्म करके हम शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। क्यों भाई साहब? सामने बैठी मेरी होने वाली सास ने झट से बात ही मुकम्मल कर दी थी। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और मिठाई का डब्बा मंगवाते हुए सबका मुंह मीठा करवाया गया। मेरी होने वाली सास ने और नंदों ने मेरा मुंह बहुत ही मोहब्बत से मीठा करवाया। मुझे सच में अब्बा के फैसले से कोई इतराज़ नहीं था। मुझे अपनी पढ़ाई से गर्ज था और मैं वो मुकम्मल करने ही वाली थी। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। हर दूसरे दिन मेरे ससुराल वाले घर आ जाते और अम्मा और अब्बा के साथ शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ रहते। सुबह से शाम तक वो घर पर ही रहते और शाम का खाना खाने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते। इनका रोज़ रोज़ आना मुझे बहुत अजीब लगता था। वो मुझ पर बहुत मेहरबान नज़र आती थी। मेरी नंदे और मेरी सास मुझ पर वारी वारी जाती। जब भी मेरी होने वाली सास मेरे सामने आती तो मेरी बलाएं लेती और कहती, मेरा आमिर तो बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी शहजादी मिलेगी। मेरी खूबसूरती पर कसीदे पढ़े जाते। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि फैमिली मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। लोग बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन कौन जानता था कि किस्मत को क्या मंजूर है।
मैंने इम्तिहान दे दिया और उसमें पास भी हो गई। जब आमिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आए थे, एक मुलाकात मेरी और आमिर की करवाई गई और उसके बाद हमारी शादी की डेट फिक्स कर दी गई। देखते ही देखते वो दिन भी करीब आ गया जब मुझे दुल्हन बनकर पिया घर जाना था। अब्बा ने घर को दुल्हन की तरह सजाया था। हर तरफ घर रोशनी से जगमगा रहा था। मैं उदासी से अपने कमरे में बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। अंदर आने की इजाज़त लेते हुए अब्बा और अम्मा मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझे अपने साथ लगाकर कुछ नसीहतें करने लगे। मैं अम्मा और अब्बा की बात को खामोशी से सुन रही थी। मेरा दिल बहुत बेचैन था। जी चाहता था कि अब्बा और अम्मा के सीने से लगकर जी भर कर रो लूं। मैंने उनके बगैर रहने का कभी सोचा भी नहीं था। तभी मेरा दिल भर आया और मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, क्या बेटियां सदा अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती? ये कैसी जुदाई है? अम्मा, आप लोग क्यों मेरी शादी इतनी जल्दी करवा रहे हैं? अभी तो मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन पल गुजारने थे। अम्मा और अब्बा मेरे सर पर प्यार देते हुए कहने लगे, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा। शगनों के दिन हैं, अब तो तुम्हारी शादी में एक दिन बाकी रह गया है। खुशी खुशी अपने घर जाओ, जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए हम चाहते हैं कि खुशी खुशी अपने हाथों से तुम्हें रुखसत कर दें। अम्मा और अब्बा की चाहत ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। मैं जब अम्मा और अब्बा के बगैर रहने का सोचती तो रूह तक कांप जाती थी। रात इन्हीं सोचों में गुजरी। सारी रात मैं अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोती रही और ये सोच सोच कर उदास हो रही थी कि अब मेरी शादी हो जाएगी और मैं पहले की तरह इस घर में आ जा नहीं पाऊंगी। अब्बा मुझे तसल्ली देने लगे और कहने लगे कि आमिर की फैमिली बहुत अच्छी है, तुम पर किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये तो मैं भी जानती थी कि सब बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन ससुराल में रहना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे करके रात गुजर गई और सुबह बारात का दिन था। दुल्हन बनाकर मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन के लिबास में मैं बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह दिखाई दे रही थी। सब लोग मेरी खूबसूरती को देखते हुए वाह वाह कह रहे थे। हर कोई मेरी तस्वीर खींचने में मसरूफ था। अम्मा और अब्बा मेरी बलाएं ले रहे थे। तभी बारात आने की इत्तला मिली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज मैं हमेशा के लिए आमिर की होने जा रही थी। जहां मुझे आमिर की जिंदगी में शामिल होने की खुशी थी, वहीं मुझे अब्बा और अम्मा से दूर होने का गम भी था। मेरा निकाह आमिर से हो गया और मुझे धूमधाम से रुखसत कर दिया गया। अब मैं दुल्हन बन के आमिर की शरीके हाथ बनकर इस घर में आ गई थी। सब ने भरपूर अंदाज से मेरा इस्तकबाल किया। आमिर की बहनें और अम्मा बहुत प्यार करने वाली थी। उनके साथ मुझे अम्मा अब्बा की कमी भी इतनी महसूस नहीं हो रही थी। सब ने मेरा बहुत दिल लगाया। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। सब ने मुझे चुप करवाया और मेरा दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की। सेज पर बैठी मैं आमिर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही आमिर कमरे में दाखिल हुआ तो आमिर ने आते ही सबसे पहले मुझे मुंह दिखाई का बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। तोहफा लेते हुए मैं बहुत खुश हो गई थी। तभी आमिर ने बातें करते हुए मुझे अपने घर वालों के बारे में कुछ मालूमात थी। अम्मा गुस्से की बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो मेरी माँ हैं। मैंने कुछ नहीं कह सकता, इसलिए तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बड़ी बहन जो कि दोनों शादीशुदा हैं, अक्सर ही वो अम्मा के पास आई रहती हैं। उनके साथ भी तुम्हें बहनों वाला सलूक रखना होगा। सबकी बातों को बर्दाश्त करना और सबको साथ लेकर चलना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। ऐसी कई नसीहतें पहली रात मुझे आमिर से सुनने को मिली थी। मैंने अपने घर का माहौल ऐसा नहीं देखा था। आमिर ने अपने घर का माहौल मेरे सामने ऐसे पेश किया जैसे मैं कोई जंग लड़ने आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी। जैसे तैसे करके रात गुजरी। आमिर दिल के बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। यही सोचते हुए मैंने सब्र कर लिया कि शौहर अच्छा हो तो अम्मा कहती हैं सब अच्छा ही होता है। सुबह हुई, दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी और मुझे गुस्से भरे लहजे में घूरते हुए कहने लगी, आँख नहीं खुली अभी तुम्हारी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तुम अभी तक सो रही हो। उठ जाओ, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आते ही होंगे। पहले ही दिन मुझे सासू माँ ने बहुत बातें सुना दी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसे ही वलीमे का दिन भी गुजर गया। न जाने नाश्ते को लेकर मेरी सास ने आमिर के दिल में क्या बात डाल दी थी। आमिर को मेरी अम्मा और अब्बा पर इंतहा का गुस्सा था। आमिर वलीमे में मौजूद नहीं थे और इसी गुस्से की वजह से वो मेरे साथ मेरे मैके भी नहीं आए थे। सोनी ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए बताया, सवेरा आपी, आपकी सास और आपके नंदे आपस में बातें कर रही थी कि शादी तो हो गई है, अब ऐसे ही आमिर के कान भर भर के इसे सवेरा से दूर करना है। अगर आमिर के दिल में सवेरा ने जगह बना ली तो वह हमारी फिक्र करना छोड़ देगा। आमिर को 1 माह की छुट्टी मिली थी और इस 1 माह में ज़्यादातर दिन मुझे आमिर को मनाने में गुजर गए थे। छुट्टी गुजारने के बाद आमिर वापस बैरून मुल्क चले गए।
अब मेरी सास और नंदों के जुल्म शुरू हो गए। ना तो अब मुझे मेरे मैके जाने की इजाज़त थी और ना ही मुझे आमिर से बात करने की इजाज़त मिलती थी। जब जब आमिर का फ़ोन आता तब तब मेरी सास यही कहती नजर आती, सवेरा सोई हुई है, सवेरा नहा रही है, सवेरा बाथरूम में है। वो मेरे शौहर के साथ बात ना करवाने के बहाने तलाश करती रहती और कभी भी मेरी आमिर से बात नहीं करवाती थी। मैं हर वक्त तड़पती रहती कि मैं अपने शौहर की आवाज़ सुन लूँ, लेकिन सासू माँ और नंदे तो जैसे मेरे और आमिर के दरमियान एक दीवार खींचने में लगी हुई थी। मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया जाता, सारे घर का काम मुझसे करवाया जाता। मैं अपने घर में महारानियों की तरह पली बड़ी थी, कभी भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। यहाँ मुझे हर वो काम करना पड़ता जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं काम करने से नहीं कतराती थी, लेकिन मेरे साथ जुल्म इस हद तक होता कि मेरी शादीशुदा नंदे भी अपने शौहरों के साथ मेरे घर आकर रहने लगती। कई कई हफ्ते वो यहीं डेरा जमाए बैठी रहती। आमिर की मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा था। शौहरों के साथ वो कई कई दिन, कई कई हफ्ते यहीं पर पड़ी रहती और बच्चे भी साथ होते। छोटी नंद के भी 2 बच्चे थे। दोनों नंद के बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी होती। उन्हें नाश्ते से लेकर रात को सुलाने तक की जिम्मेदारी मेरी होती। अगर किसी नंद के बेटे को वॉशरूम करवाना होता तो आवाज़ लगाई जाती, अरे सवेरा उठ जाओ और जाकर बच्चे को वॉशरूम करवा कर लाओ। मुझे बहू कम और नौकरानी बनाकर ज़्यादा रखा गया और जब एक हफ्ता रहकर एक नंद अपने घर वापस जाने लगती तो वो अगले पूरे हफ्ते का खाना मुझसे तैयार करवा के अपने साथ लेकर जाती। और फिर अभी एक को भेजकर सुख का सांस भी नहीं लेती थी कि दूसरी नंद रहने के लिए आ जाती। और 2 नंदे तो वैसे ही गैर शादीशुदा मेरे सर पर हर वक्त सवार रहती थी। सबसे छोटी नंद अक्सर ही मेरे साथ हमदर्दी जता लेती, लेकिन बाकी 3 की 3 नंदों ने मेरे नाक में दम कर रखा था और ऊपर से मेरी सास इन सब का सिरा थी। मैं सारा दिन रोती रहती कि अपनी बेटियां तो हर वक्त घर पर डेरा जमाए बैठी रहती हैं, और जब भी मैं अपनी माँ के घर जाने का कहती तो सास झिड़क कर बिठा देती और कह देती कि मेरे बेटे की कमाई इतनी फजूल है जो तुम्हारे लाने ले जाने में ही उड़ा दूं। मुझे बहुत दुख होता, मुझे भी अपने मैके की याद सताती थी, मगर यहाँ मुझे तकलीफ में रखा जाता। मैं बेसब्री से आमिर के आने का इंतज़ार करती। आमिर ने भी कभी नहीं कहा था कि मेरी सवेरा से बात करवाएं या मेरे बारे में कभी नहीं पूछा था। आमिर को गए 1 साल होने को था। अब आमिर 1 साल बाद छुट्टी पर आने वाले थे। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही आमिर पाकिस्तान आए तो वो सारा वक्त अपनी माँ और बहनों के साथ ही गुजारते। मुझे 2 पल भी मोहब्बत के उनके साथ गुजारने को नहीं मिलते थे। अगर मैं कोई गिला शिकवा करती तो आमिर भी मुझे झाड़ कर रखते थे और कहते कि मेरे लिए मेरी माँ और बहनें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मैं खामोश रह जाती। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ एक काम वाली बनाकर इस घर में रखा गया था। कई दफ़ा मैं दिल बर्दाश्ता होकर रो पड़ती और अपनी किस्मत को कोसती कि मेरे घर में नौकर चाकर सब कुछ था, हर सहूलत मुयस्सर थी, लेकिन किस्मत को देखो मेरे साथ कैसा खेल खेला है। मुझे लाकर कहाँ बिठा दिया जहाँ पर किसी को मुझसे मोहब्बत तो दूर की बात मेरा एहसास तक नहीं था। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी मेरा एहसास नहीं करता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और इन्हीं झंझटों में पूरे 6 साल गुजर गए। मेरा दिल अब मुर्दा हो चुका था। मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। कोई मेरे पास आता ना आता एक बराबर ही था। मुझे अब आमिर की ख्वाहिश भी नहीं रही थी। मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और अपना दिल मैंने एक बच्चे के साथ ही लगा लिया था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और मुझे क्यों वक्त नहीं देता। जब जब आमिर आते तो मैं रो पड़ती कि आप मुझे वक्त नहीं देते, मेरा भी आप पर कुछ हक है। लेकिन आमिर हमेशा अपनी माँ और बहनों का उज़्र पेश कर देते और मुझे खामोश करवा देते। अल्लाह ने मुझे चांद से बेटे से नवाजा था। अब मैंने अपना दिल अपने बेटे के साथ लगा लिया। आमिर ने दिन रात बैरून मुल्क कमाई कर करके अपनी बहनों की शादियां कर दी थीं और फिर 6 साल बाद आमिर की माँ भी वफात पा गई। आमिर अपनी माँ के मर जाने के बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान आकर रहने लगे। अपना काम कारोबार यहीं पर शुरू कर लिया। अब शायद मेरी सख्तियाँ ख़त्म होने वाली थीं। मुझे अब मैके में जाने की इजाज़त भी मिलने लगी, लेकिन अब मेरे दिल की हर ख्वाहिश मर चुकी थी। पाकिस्तान आने के बाद अब आमिर को महसूस होने लगा था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे के बाप है। आमिर अक्सर मुझे अपने पास बुलाते और मैं हमेशा ही इनकार कर देती, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं ऐसे बेहिस इंसान के करीब जाऊं जिसने मेरी पूरी जवानी इंतज़ार में ही रोल थी। जब जब आमिर मुझे अपने पास बुलाते या मेरे करीब आने की कोशिश करते तो मुझे वो वक्त याद आता जो मैंने अकेले अपने बिस्तर पर रोते हुए गुजारा था। एक माह की छुट्टी पर आते तो वो भी एक माह आमिर अपनी माँ और बहनों के साथ गुजार जाते। वो एक माह भी मैं अकेले ही अपने बिस्तर पर तड़पते हुए गुजार देती। आमिर मेरे पास बैठना तो दूर की बात, 2 लफ्ज़ मोहब्बत के भी नहीं बोला करते थे। मैं तड़प कर रह जाती थी
ये सोचते हुए कि अब अगर आमिर चले गए तो फिर 1 साल बाद वापस आएंगे। मैंने वो वक्त बहुत ही तन्हाई में गुजारा था। अब मुझे तन्हा रहने की आदत हो चुकी थी और अब आमिर को मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मेरा दिल उनकी तरफ माइल ही नहीं होता था। मेरी इस आदत से आमिर को अब गुस्सा आने लगा। कई दफ़ा मेरी और आमिर की बहस हो जाती। आज भी सुबह जब मैं नहा कर निकली तो अपने लंबे काले बाल शीशे के सामने खड़ी होकर बना रही थी। जब आमिर अपने दोस्त से मिलकर घर आए थे, मुझे देखते हुए प्यार से मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए अपने करीब बुलाने लगे तो मुझे कोफत होने लगी। मैं आमिर से दूर दूर रहती। ये देखकर आमिर को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गुस्से में ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले गए और बोले, शरीफ औरतों का दिल शौहर से नहीं भरता, तुम्हें कोई और मिल गया होगा जो तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है। मेरे लाख बुलाने पर भी तुम मेरे करीब नहीं आती। आमिर की बात सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लगातार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने किरदार पर होती बातें सुनकर तड़प कर रह गई। जब भी मैंने आमिर से कहा कि आपको वो वक्त याद नहीं जब मैं सिसक सिसक कर आपके बगैर गुजारती थी, तब तो आपको मेरा रत्ती भर भी एहसास नहीं था। क्या तब भी आपको मालूम नहीं था कि शरीफ औरतों को भी अपने शौहर की ज़रूरत होती है, उनके साथ की उनकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जब मेरे अंदर की औरत मर चुकी है और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रही, तब आपको मेरी याद आ गई। अब आप मुझसे किसी किस्म की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैंने अपनी जवानी आपके इंतज़ार में गुजार दी। इसी बिस्तर पर, इसी बंद कमरे में मैं सारा दिन आपको याद करके रोती थी और सारी सारी रात बेचैनी से इसी कमरे में गुजारती थी। तब मुझ पर, मेरी ज़ात पर आपको तरस नहीं आया? कभी आपकी माँ और कभी आपकी बहनों के जुल्म बर्दाश्त करती। मैं खाते पीते घराने से आई थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। आपके घर वालों ने मुझे एक नौकरानी बना कर रख दिया। आपने कभी मेरी परवाह नहीं की थी। अपनी माँ बहनों के आगे आप मुझे कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ये नहीं कहती कि एक मर्द को अपनी माँ या बहनों का साथ नहीं देना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत और अपने हिस्से का वक्त आपसे मांगती थी और आप मुझे वो भी नहीं दे पाते थे। अब जब मैंने आपको वक्त देने से इनकार किया तो आपने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। वाह आमिर वाह, क्या बात है। मर्दों के लिए कुछ और उसूल और औरतों के लिए कुछ और उसूल। हमारे इस्लाम में जितना शौहर के हकूक़ पर जोर दिया गया है, उतना ही बीवी के हकूक़ पर भी जोर दिया गया है। फिर क्यों कर हर मर्द अपने हकूक़ मनवाना जानता है, जबकि बीवी के हकूक़ पूरा करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। आमिर की बात ने आज मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं ज़ारों की तार रोने लगी। गम के आलम में मेरे मुँह में जो जो आ रहा था मैं आमिर से कहती जा रही थी। ये 6 साल का गुबार था जो आज लावा बन के फूट पड़ा था। आमिर चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो गलती पर हैं। आज उन्होंने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। मेरे किरदार पर बात करते हुए आमिर को अपने किए पर पछतावा था। मेरी ज़िंदगी के हसीन पल गंवाने का अब उन्हें भी दुख था। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने भी आमिर को दिल से माफ़ कर दिया था। आज मेरे पास 2 बेटे हैं और आमिर ने मुझे हर वो खुशी दी जो वो मुझे पहले नहीं दे पाए थे। आज मैं आमिर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज भी जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो आमिर मुझसे उस वक्त के लिए माफ़ी मांगते हैं जो कभी उन्होंने मुझे देने से इनकार किया था, और मैं आमिर को माफ़ करते हुए उनके सीने से लग जाती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का, जिसने वक्त पर आमिर को नेकी की हदायत अता की और मेरा घर उजड़ने से बचा लिया।